Okay, so let's talk about the equatorial field of an electric dipole. इसको समझने के लिए let's take a dipole for example. This is a dipole. This is a positive charge here and this is a negative charge. ठीक है. Now I am connecting these two charges. So this distance we call as the dipole length. Let this point be the midpoint of this electric dipole here O. And if we draw a normal, a perpendicular on this point O, ठीक है, या at this point O, अगर हम एक normal ड्रा करेंगे, एक perpendicular ड्रा करेंगे, then this perpendicular we call as an equatorial line. इसी line को हम कहेंगे equatorial line. You can draw it from below side also. There is no problem. ठीक है, the line, if I produce this line downwards, then this whole line we call as an equatorial line. ठीक है. Now what we have to do basically is we have to find an expression for the electric field due to this dipole at some point P, for example, and this point P lies at the equatorial line of this dipole. तो इस equatorial line पे कोई भी points ले लो आप, इस point पे हमको क्या देखना है, electric field देखना है because of this dipole. ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, we will connect these two points. Here is negative charge, let this point be A for example, and charge is minus Q, and let this point be B, and here charge is plus Q. We just connect these 2 points A and B for example like this. Or we know that this distance, this dipole length is 2A, and since O is a midpoint, that simply means this length is A and this length will also be equal to A. So the whole distance or the whole length of this dipole will be 2A. We have taken some point P here, and what we have to find, the electric field due to this dipole at point P. Okay, so let's proceed. For example, I will try to find out the magnitude of electric field due to the charge plus Q placed at point B. Okay, so what is that equal to? So that will be equal to EB. For example, I will denote the electric field due to this charge, the charge plus Q which is placed at point B. इसकी वजह से कितना electric field है point P पे, you know this is a point charge है ना, and this point P, इस पे कितना electric field होगा because of this charge. ठीक है, इससे पहले हम करेंगे जो point P है और जो ये mid point O है, let it be distance r away from midpoint. This OP is equal to R, and you know this is equal to A. ठीक है, so the electric field due to this point charge which is placed at B, I called it as EB. तो EB की वजह से या इस point plus Q charge की वजह से इस point P पे कितना electric field होगा, we know the relation 1/4 pi epsilon naught Q, that is Q here, divided by distance. Now distance is here PB, right? The point और charge के दरमियान जो distance है, that is PB. So I will write PB, and you know it is actually distance square, है ना, जो हमारे पास basically formula है ना, electric field due to a point charge that is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square. ये हमने already पहले पढ़ा हुआ है, previous videos में हमने दिखाया है आपको. So यही formula हम यहाँ भी use करेंगे. मेरे पास एक point charge है, मेरे पास एक point P है, तो इनके बीच का distance PB है for example. तो इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगेन आई एम यूजिंग दिस रिलेशन, आई कॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एज EB. सो दैट विल बी 1/4 pi epsilon naught Q divided by R. Here R is basically this distance PB, and it is square here, so it is PB square. Okay, or now what is PB square? If you see this right triangle OBP, है ना, so this is a right triangle, here is 90-degree angle, so this is perpendicular, this is base. And what is this side PB? This will be the hypotenuse. So I will simply use the Pythagoras theorem to find out this PB. So PB square will be equal to hypotenuse square will be equal to perpendicular square, that is R square, perpendicular square is R square, and base, that is A. So R square plus A square, simply by using Pythagoras theorem. ठीक है, तो I will substitute this PB square here. So I will get 1/4 pi epsilon naught Q divided by PB square is R square plus A square. So let this the first equation, let this be called as first equation or equation number first,
एंड जो ये ई बी है बेसिकली, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स। तो पॉइंट पी पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, दैट विल बी आउटवर्ड्स लाइक दिस, ठीक है। So this will be the direction of electric field EB at point P, because ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड होके हुए तो डेट विल बी ऑलवेज आउटवर्ड्स, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज इटसेल्फ। तो इसका हम नाम रखेंगे PM, जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है लेट इट बी PM। तो इस PM में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज EB, सो EB की डायरेक्शन जो है अलोंग PM है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स है। सिमिलरली इफ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट EA, that simply means electric field due to this negative charge at point P, है ना। पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज मैंने कहाँ पर रखी है, पोजीशन A पे रखी है, तो इसलिए आई विल कॉल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज EA। सो अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला इट विल बी 1/4 pi epsilon naught, charge is here Q, it is Q, I will not write here minus Q, why, because I am taking only the magnitude, ठीक है। आई एम कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसलिए मुझे माइनस और प्लस की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस सेम, ठीक है। सो आई विल सिंपली राइट Q हियर डिवाइडेड बाय AP, हियर AP इज द डिस्टेंस, राइट। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम you will see this AP square, hypotenuse square will be equal to A square plus R square. So again I will write AP square here, ठीक है। And using Pythagoras theorem I can write this equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by AP square is again R square plus A square, ठीक है। So let this be equation second। जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में जो हमने EB की डायरेक्शन ली थी that is along PM, so I will write this is along PM। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज लाइक दिस, है ना। तो ये इसका मैं नाम रखता हूँ EA। सो EA विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, रेडियली इनवर्स, ठीक है। सो इसका मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर नाम L। सो आई कैन राइट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग PL, ठीक है, अलोंग PL टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों फील्ड हमें निकाल दिए बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज इज पॉइंट P। नाउ हमें रिजल्टेंट देखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे कितना है। एक तो है EB बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है EA बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वी विल सिंपली रिजॉल्व दीज टू थिंग्स और वी कैन सी दैट वी कैन यूज, अगर आप देखोगे ये एक पैरेललोग्राम बनता है, इफ आई जस्ट प्रोड्यूस दिस size like this and this is a parallelogram, or you know the diagonal according to parallelogram law of vector addition, according to parallelogram law of vector addition the resultant will be given by the diagonal of the parallelogram, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने बनाया PM, इस पॉइंट का नाम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल N, ठीक है। सो PMNL, दिस इज अ डायग्राम। जो मेरे पास EB और EA हैं, these two vectors or these two vectors just represent the sides of the एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। EB और EA ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इफ आई विल ट्राई टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम, तो मैं यहाँ से एक साइड डालता हूँ, यहाँ से एक साइड डालता हूँ, तो आई एम कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ we know from the parallelogram law of vector addition the resultant of the two vectors who actually represent the adjacent sides of a parallelogram, their resultant is given by the diagonal, right, diagonal of that parallelogram। तो यहाँ पर मैंने एक diagonal डाला है इस parallelogram का, and this diagonal which is called as PN, this diagonal give me the resultant electric field and I will name that resultant electric field as E for example, ठीक है। So this E is basically here the resultant electric field या total electric field at point P because of the both charges, ठीक है। So this is my E। So यही E मुझे निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस इज माई जॉब कि इस E का जो है इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, व्हाट इज द टोटल E। अब इसको कैसे करेंगे हम, वी कैन यूज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अनदर जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि वी कैन यूज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आल्सो, ठीक है। एंड वी हैव द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में है एक और बात ये भी है कि जो फॉर एग्जाम्पल ये जो E जो हमें निकालना है ना, इसकी जो डायरेक्शन होगी, है ना,
द वेक्टर एंड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन, उनका रेशियो निकालना होता है। डेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द अनदर वेक्टर, ठीक है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन, एंड डेट विल बी इक्वल टू अनदर वेक्टर डिवाइडेड बाय इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन। यानी ये जो मैं समझा रहा हूँ बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे जो मेरे पास E है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर एग्जांपल, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन है इट इज पैरेलल टू BA, दिस PN इज पैरेलल टू BA, ठीक है। यानी PN की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन है जो BA की डायरेक्शन है। अगर आप B से लेके A की ओर जाओगे, जो आपको डायरेक्शन मिलती है, सेम डायरेक्शन किसकी है, हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की PN या E की, ठीक है। तो आई कैन डिवाइड दीज टू डायरेक्शंस, और आई कैन सिंपली डिवाइड E डिवाइडेड बाय, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग BA, आई कैन राइट E डिवाइड बाय BA, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू EA की जो डायरेक्शन है, EA की डायरेक्शन कहाँ से है, EA की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो EA की डायरेक्शन दैट इज EA, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स PA, ठीक है, या अलोंग PA, सो आई विल राइट EA डिवाइडेड बाय PA। सो दिस विल बी इक्वल टू EB की जो डायरेक्शन है दैट इज EB, इसकी डायरेक्शन कहाँ से है, दैट इज BP, अगर हम BP की बात करेंगे, ठीक है, EB की वही डायरेक्शन है जो BP की डायरेक्शन है। सो आई कैन डिवाइड दीज टू, आई कैन राइट हियर BP। So this comes basically from the triangle of vector addition, ठीक है। It is also called as symmetry relation और symmetry formula और symmetry relation बेसिकली कहेंगे इसको, कि जो हमारे पास वेक्टर हैं उसकी डायरेक्शन, उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। That will be always equal to another vector, और उसका जो डायरेक्शन होगा उनके रेशियो के बराबर होगा। तो दिस इज हाउ वी राइट इट। सो दिस इज बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो फ्रॉम दीज टू थिंग्स आई कैन राइट दिस E, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू EA इनटू जो BA है ये यहाँ पर चला जाएगा, सो इट विल बी BA डिवाइडेड बाई PA, है ना, BA डिवाइडेड बाई PA, और आई कैन राइट इट EA। व्हाट इज EA हमने ऑलरेडी निकाला है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब BA डिवाइडेड PA मल्टीप्लाई करेंगे BA क्या है हमारा, BA दिस इज डायपोल लेंथ, सो इट इज इक्वल टू 2A, ठीक है, डिवाइडेड बाय PA डिवाइडेड बाय PA। नाउ व्हाट इज PA इक्वल, PA is this thing, and this is simply equal to the hypotenuse, है ना, hypotenuse of this right triangle, and according to Pythagoras theorem this PA is equal to R square plus A square, PA square will be equal to R square plus A square, then PA will be equal to R square plus A square whole raised to power 1/2। फ्रॉम दिस रिलेशन देखिए यहाँ पर जैसे AP मैंने निकाला है, AP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नाउ AP विल बी इक्वल टू इस स्क्वायर के बजाय यहाँ पर रूट आ जाएगा, है ना, वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है। सो AP या PA इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। सो आई कैन राइट E इज इक्वल टू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये ट्वाइस A है, डायपोल लेंथ है, ये चार्ज है, एंड डायपोल लेंथ इनटू चार्ज दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, सो इट इज कॉल्ड P डिवाइडेड बाय दिस इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका पावर 1 है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इसका पावर 1/2 है, दीज पावर्स विल गेट एडेड, सो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट electric field or the magnitude of the resultant electric field due to a dipole on equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट चूज कर लो, उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द डायपोल, दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी जो हमने देखी है, इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी ये है along दिस डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन है इट इज एक्चुअली इन द डायरेक्शन ऑफ BA और इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो आई कैन राइट along BA, ठीक है, सो आई विल राइट along BA, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है
दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज अलोंग दिस डायरेक्शन। सो ये याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगी इन दिस केस दैट विल बी अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और जो हमने एक्शन लाइन किया था इससे पहले, तो उसमें क्या होता था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी दैट वाज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, लेकिन यहाँ पर अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब एक स्पेशल केस लेंगे हम। स्पेशल केस में हम लेते हैं फॉर ए शॉर्ट डायपोल। ठीक है, अगर हमारा डायपोल शॉर्ट हो। नो, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट डायपोल? शॉर्ट डायपोल का मतलब ये है जब आपका ये जो लेंथ आप ले रहे हो ना, जो डिस्टेंस या डायपोल लेंथ ले रहे हो, जब ये लेंथ बहुत कम हो। लेंथ कम होने का मतलब ये है जो ए, अगर आप जो ए लेते हो ये बहुत कम लेते हो। ठीक है, नाउ इफ ए इज वेरी वेरी लेस, किससे कम होगा? एज कम्पेयर टू दिस आर। ठीक है, जो आपने ये पॉइंट P कितना दूर लिया है एट R डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, लेकिन अगर आप A बहुत कम कर रहे हो तो वी कैन राइट दिस A कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, दिस A कैन बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू R। सो फॉर शॉर्ट डायपोल वी हैव ए कंडीशन A इज वेरी वेरी लेस देन R। ठीक है, अब अगर ऐसा केस है देन A स्क्वायर विल बी फर्दर लेस एंड R स्क्वायर विल बी फर्दर मोर, है ना। आर ज्यादा है, ए कम है, तो आर का स्क्वायर करोगे तो और ज्यादा बन जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे तो और कम बन जाएगा, तो इन दैट केस ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे। व्हाट वी गेट, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट ही कर लो, इट विल आर स्क्वायर होल इज पावर 3/2, आर स्क्वायर होल इज पावर 3/2, और आई कैन राइट E इज इक्वल 1/4 पाई epsilon naught P divided by this square and this 2 will go, so I get R cube. ठीक है, so this is the relation for the electric field on the equatorial line of an electric dipole for a short dipole. ठीक है, again you can see here E obeys the inverse cube law, यानी E is inversely related with the cube of the distance. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप R बढ़ाओगे, यानी अगर आप पॉइंट P को दूर ले जाओगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, यहाँ पर आप दोबारा देखेंगे इस पॉइंट P को अगर आप थोड़ा और दूर ले जाओगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शार्पली डिक्रीज होगा, बहुत जल्दी डिक्रीज होगा, बिकॉज इट इज बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड विद द आर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा इसमें ग्राफ एक प्लॉट डालेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एक रफली प्लॉट। ठीक है, ये अगर आप आर लेंगे यहाँ से, तो ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग वाई एक्सिस, दिस इज आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देन जो आपका ये आएगा वेरिएशन वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इट विल शार्पली डिक्रीज। जो ही आप थोड़ा आर बढ़ाओगे, थोड़ा पॉइंट दूर ले जाओगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस, थैंक यू वेरी मच।